Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, we are studying chapter 2 of your history book New Kings and Kingdoms. And today's subtopic is a closer look the Chols. This is the page number 22. So let's see from Urayur to Thanjavur. So let's start. How did the Chols rise the power? A minor chiefly family known as the Matariyar held power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the Pallav king of Kanchipuram. Vijayalaya, who belonged to the ancient chiefly family of the Chols from Uriyar, captured the delta from the Matariyar in the middle of the 19th century. He built the town of Thanjavur and a temple for goddess Nishumbasudini there. The successor of Vijayalaya conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power. The Pandyan and the Pallav territories to the south and north were made part of this kingdom. Rajraj I, considered the most powerful Chol ruler, became king in 985 and expanded control over most of these areas. He also reorganized the administration of the empire. Rajraj's son Rajendra I continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for these expeditions. तो चिल्ड्रन चोल साम्राज्य जो था वो कैसे सत्ता में आया देखते हैं। उरैयूर से लेकर के थंजावुर तक देखिए चोल जो थे सबसे पहले तो एक कावेरी डेल्टा के पास मुट्टरीयार नाम का एक स्थान था। वहाँ पर एक छोटी सी फैमिली में कुछ लोग रहते थे। एक माइनर चीफली फैमिली थी जो कि मुट्टरीयार कहलाते थे। अब जो पल्लव थे वो कांचीपुरम के जो राजा थे उनके मुखिया थे और उनके अंडर में उनका राज चलता था। तो बाद में विजयालय जो था उरैयार का, उसने क्या किया कि मुट्टरीयार के मुखिया को हरा दिया 19th सेंचुरी में और उसने उस पर उस डेल्टा पर अपना कब्जा कर लिया। फिर उसने थंजावुर और एक टेंपल बनाया निशुम्भसूदनी का वहाँ पर। और इसके बाद जो विजयालय था वो उसने ना सिर्फ उस डेल्टा पर कब्जा किया बल्कि जो पड़ोस के जो राज्य थे उन पर भी कब्जा करता चला गया। और पांड्यन और पल्लव जो थे साउथ और नॉर्थ में, वहाँ के किंगडम पर भी उसने अपना अधिकार जमा लिया। अब चोल का जो सबसे फेमस राजा था वो राजराज फर्स्ट था, जिसने कि 985 में राजगद्दी संभाली और उसके बाद उसने अपने जो पावर है, जो अपना राज्य है, उसको बढ़ाता चला गया। उसका जो बेटा था राजेंद्र फर्स्ट, उसने भी अपने पिता की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया और गंगा वैली, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपना कब्जा करता चला गया, अपने एम्पायर को बढ़ाता चला गया। उसने अपनी एक नेवी भी तैयार की ताकि वो जो पानी वाले रास्ते हैं वहाँ से लड़ाई करके और राज्यों को जीत सके। Splendid temples and bronze sculpture. The big temple of Thanjavur and Gangaikonda Cholpuram, built by Rajraj and Rajendra, are architectural and sculpture marvels. Chol temples often became the nuclei of settlements which grew around them. These were centers of craft production. Temples were also endowed with land by rulers as well as by others. The produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. Priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. In other words, temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. Amongst the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. Chol bronze images are considered amongst the finest in the world. While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well.
तो तंजावुर और गोंगईकोंडा में राजेंद्र और राजराज ने बहुत ही मार्वलस टेम्पल्स बनवाए, जो कि बहुत ही कला के अद्भुत नमूने हैं। एक प्रकार से उनको चमत्कार बोला जाता है। और मंदिर के आसपास जो है जितने भी लोग धीरे धीरे निवास करने लगे, और वहाँ पर जो लोग भी वहाँ पर काम करते मंदिर के आसपास, उनको उनकी खर्चे जो हैं, जैसे प्रीस्ट हो गए, गार्लैंड मेकर्स हो गए, ये सारे हो गए, इन सब को राजा और उसके साथ साथ जो भी जितने लोग थे दान देते थे, उनके द्वारा उनके खर्चे भी चलने लगे। और इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो मंदिर थे वो ना सिर्फ एक मतलब धार्मिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी एक जो उनका साम्राज्य था उसके लिए एक उत्कृष्टता के केंद्र बन गए। और इन सब में सबसे ज़्यादा उस समय के जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। जो चोल राजा थे उन्होंने ब्रॉन्ज इमेजेस का बहुत ही फाइनेस्ट जो है एग्जाम्पल्स दिया हुआ है पूरे वर्ल्ड में। उन ब्रॉन्ज की बहुत अच्छी मूर्ति कला जो है वो बनाई गई हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो चोल राजाओं के समय का जो ये मंदिर वगैरह थे ये बहुत ही अद्भुत हैं। Agriculture and irrigation. Many of the achievements of the Chols were made possible through new developments in agriculture. Look at map 2 again. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. Water from the channels also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large-scale cultivation. Forest had to be cleared in some regions, land had to be leveled in other areas. In the Delta region, embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields. In many areas, 2 crops were grown in a year. In many cases, it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. In some areas, wells were dug. In other places, huge tanks were constructed to collect rainwater. Remember that irrigation works require planning, organizing labor and resources, maintaining these works, and deciding on how water is to be shared. Most of new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities. So children, अब देखिए चोल एम्पायर के समय में एग्रीकल्चर और इरिगेशन दोनों ही बहुत अच्छी तरह से किया जाता था। जो एग्रीकल्चर है उसमें राइस है, और राइस का कल्टीवेशन जो है बहुत अच्छे से होता था, क्योंकि उन्होंने जो वाटर का स्टोर है वो काफ़ी अच्छे से किया हुआ था। वो देखा जाए तो यदि तमिलनाडु में देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो है उनका बहुत ही अच्छा था। 6th सेंचुरी में उन्होंने लार्ज स्केल कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। फॉरेस्ट जो थे उनको उन्होंने क्लियर कर दिया कुछ रीजन में निकालने के लिए, कुएं खुदवाना और बहुत बड़े बड़े टैंक बनवाना रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। तो इस तरह का उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ था। The administration of the empire. How was the administration organized? Settlements of peasants known as Ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture. Groups of such villages formed larger units called Nadu. The village council and Nadu performed several administrative functions, including dispensing justice and collecting taxes. Rich peasants of the Valala caste exercised considerable control over the affairs of Nadu under the supervision of the central Chol government. The Chol kings gave some rich landowners titles Muvendevelan, Avelan or peasant serving 3 kings, Ariyar, chief, etc. as markers of respect, and entrusted them with important offices of the state at the center.
We have seen that Brahmins often received land grants or Brahmandev. As a result, a large number of Brahman settlements emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. Each Brahmandev was looked after by an assembly or sabha of prominent Brahman landholders. These assemblies worked very efficiently. Their decisions were recorded in detail in inscriptions, often on the stone walls of temples. Associations of traders known as nagrams also occasionally performed administrative functions in towns. Inscriptions from Uttaramerur in Chengalput district, Tamil Nadu provide details of the way in which the Sabha was organized. The Sabha had separate committees to look after irrigation works, gardens, temples, etc. Name of those eligible to be member of these committees were written on small tickets of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot, from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. तो चिल्ड्रन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था एम्पायर का, चोल्स का, उसको देखते हैं। चोल्स जो थे उन्होंने जो बसा रखे थे गांव, जो बसा रखे थे उनको और बोला जाता, जो पीजेंट्स के गांव थे उनको और बोला जाता था, और वहाँ पर वो ज़्यादातर काम एग्रीकल्चर करते थे। एग्रीकल्चर जो था वो इरिगेशन के द्वारा किया जाता था। जो ग्रुप होते थे विलेजेस में, बड़े बड़े ग्रुप होते थे, उनके नादू बोला जाता था, और जो विलेज काउंसिल होती थी वो नादू के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको करती थी, और टैक्सेस वगैरह उनसे कलेक्ट करती थी, और जो भी जस्टिस वगैरह होते थे, कोई भी न्याय वाय की बात हो तो वो उनको दिलवाते थे। जो रिच पीजेंट्स थे वो वेलाल कहलाते थे, और वो जो नादू वगैरह हैं उनके सारे कामों को, अफेयर्स को देखते थे और उन पर कंट्रोल करते थे। और जो वेलाल हैं वो चोल गवर्नमेंट के सेंट्रल में जो चोल गवर्नमेंट होती थी उनके अंडर में सुपरविज़न करते थे, और जो वल्लाल थे उनके ऊपर सेंट्रल चोल गवर्नमेंट का सुपरविज़न चलता था। तो इस तरह से उनके जो व्यवस्था थी प्रशासन की वो बटी हुई थी। इसके साथ साथ जो चोल राजा थे उन्होंने कुछ लैंड ऑनर्स थे, उनको कुछ टाइटल भी दे रखे थे एज अ रिस्पेक्ट, जैसे कि मुवेंद वेलन या फिर आरियार एक्सेट्रा, इस तरह के। हमने पहले देखा था कि उन्होंने ब्राह्मण्स को प्रशस्ति लिखवाते थे कि अपने आप को वो जैसा शो करना चाहते थे वो लिखवाते थे, और उसके बदले में ब्राह्मण को रिवार्ड में वो लैंड देते थे, ज़मीनें देते थे, और वो जो ज़मीनें लेते थे वो ब्राह्मणदेय कहलाते थे। और ब्राह्मणदेय जो होते थे वो धीरे धीरे इस तरह से कावेरी वैली में वहाँ पर सेटल हो गए, साउथ इंडिया में। धीरे धीरे जो ब्राह्मणदेय होते थे वो क्या करते थे कि असेंबली या सभा जो होती थी उसमें ब्राह्मण जो लैंड होल्डर्स होते थे उनको हेड बनाया जाता था, और वो क्या करते थे, वो सारे डिसीजंस लेते थे, और उनके डिसीजंस ना सिर्फ वहाँ पर मौखिक रूप से बल्कि उनको इंस्क्रिप्शंस के रूप में एज अ रिकॉर्ड भी रखा जाता था। जैसे टेम्पल्स हैं उनमें दीवारों में लिख देना, या और भी ताम्रपत्र वगैरह उनमें लिख देना, इस तरह से करते थे। और जो ट्रेडर्स होते थे, ट्रेडर्स की जो एसोसिएशंस होती थी, ग्रुप्स होते थे, उनको नगरम कहा जाता था, और जो है वो ज़्यादातर शहरों में, टाउन्स में रहते थे, वहीं से वो अपना व्यापार करते थे। और इस तरह के जो इंस्क्रिप्शन है वो तमिलनाडु का एक चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट है, उसके उत्तर मेरूर स्थान पर इस तरह के इंस्क्रिप्शंस भी पाए गए हैं। सभा के जो है सभा होती थी वहाँ, और कमेटी बनती थी, ये सारे वहाँ पर इस तरह के पाए गए हैं। तो जो ये होते थे सभा, ये क्या करती थी, ये गांव वगैरह के जो गार्डन्स हैं, टेम्पल्स हैं, जो इरिगेशन वर्क हैं, इन सब की देखभाल करती थी। कहाँ नए कुएँ खुदवाने हैं, कहाँ टेम्पल बनवाना है, उनकी देखभाल कैसे होनी है, गार्डन्स की देखभाल कैसे होनी है, ये सारा वो मेंटेन करते थे, देखते थे। तो इस तरह की उनकी व्यवस्था जो थी वो बनी हुई थी। तो चिल्ड्रन, आज की वीडियो में हमने चोल गवर्नमेंट के बारे में, चोल राजाओं के बारे में पढ़ा, चोल किंगडम का, कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका एग्रीकल्चर कैसा था। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को देखेंगे।